دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمائے روح پرور ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ یہ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل کا حل احادیث طیبہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کے فرامین، بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کے ارشادات، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ریائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کریں گے انشاءاللہ۔ روحانی علاج حاصل کر ہی لیتے ہیں۔ فرما رہے ہیں میرا نام شہباز ہے، والدہ کا نام نعیمہ ہے، میری شادی میں رکاوٹیں، اس کا کوئی روحانی علاج؟ انشاءاللہ علاج کرتا ہوں۔ ان کو چاہیے سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک ان کو جلد شادی کے ان کے اسباب مہیا فرمائے۔ اس کے لیے انہیں چاہیے کہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت صبح اور شام کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جلد ان کی شادی کے اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ جو ایسا شخص جس کی شادی میں رکاوٹ ہو وہ کرے تو اس کو بیوی مل جائے نیک، اور اگر عورت ایسی جس کی شادی میں رکاوٹ ہو وہ یہ عمل کرے تو اس کو نیک مرد مل جائے۔ تو اس طرح اور بھی دیگر کئی فضائل ہیں سورہ یاسین شریف کے۔ وقت بھی مقرر ہے، مقصد کوئی کسی وقت میں پڑھی جائے گی خاص؟ جی پڑھنے کے لیے بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد، اور یا فجر کی نماز سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بنائیں انشاءاللہ۔ پڑھنے میں کوئی احتیاط، مقصد احتیاط یہ کہ مخارج وغیرہ کی احتیاط کرنی ہوتی ہے، قواعد کے حساب سے پڑھیں۔ ماشاء ایک اسلامی بھائی کی مزید وہ ہے کہ میرا بیٹا 13 دن کا ہے، اچھا بیٹی 13 دن کی روتی بہت ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ پاک کرم فرمائے، ان کی بیٹی اگر روتی ہے تو وہ اس وظیفہ میں انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں اس کو پڑھیں گے تو اس کی برکت سے ان کی بیٹی جو ہے روتی ہے اس کا رونا کم ہوگا، اور اگر ضد بھی کرتی ہے تو ضد بھی ختم ہو جائے گی۔ انہیں چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا سلام ہو، یا سلام 33 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ، پانی پر بھی دم کر دیں، وہ بھی پلائیں، اور ان کے اوپر بھی دم کر دیں۔ چلیے اب بلا تاخیر بڑھتے ہیں ہمارے ناظرین کی فون کالز کی طرف، اور ان کے استخارے اور روحانی علاج ہم ان کو بیان کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد عامر خورشید عباسی، والدہ صغرا بیگم، پچھلے 1 سال سے بیمار ہوں، تو میرے لیے استخارہ فرما دیں اور دعا بھی فرما دیں۔ کافی ساری دوائیاں وغیرہ لی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا بیماری کیا ہے، روز کمزور ہوتا جا رہا ہوں، اس کے لیے دعا بھی فرما دیں اور استخارہ بھی فرما دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مزید؟ میں اشفاق بول رہا ہوں پنڈی گیٹ سے۔ میری والدہ طبیعت خراب رہتی ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، استخارہ کروانا تھا کہ ان کو کوئی جادو یا نظر بد وغیرہ تو نہیں ہے۔ میری والدہ کا نام ہے زینب جان اور ان کی والدہ کا نام ہے شاہ بیگم۔ برائے کرم استخارہ کر کے ارشاد فرمائیں کیا مسئلہ ہے۔ بالکل، مزید کال چلائیے۔ میرا نام شہزاد اتاری ہے، شورکوٹ کینٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام تسلیم اختر ہے۔ میرے
सीने में और कमर में बाएं तरफ दर्द रहता है। तो ये इसका बहुत इलाज करवा चुका हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही क्या मसला है। मदीना कोई इलाज बता दीजिए। अभी आपको रूहानी इलाज करते हैं इंशाअल्लाह। शहजाद भाई मजीद कॉल चलाइए। मेरा नाम मोहम्मद बाबर है, मेरी वालदा का नाम सकीना बीबी है। मैं काफी अरसे से परेशान हूँ, कारोबार से तंग दस्ती बहुत ज्यादा। को हमारा कोई देखें आप। देखिए ठीक है बाबर भाई, इस्तिखारा करके अभी आपको रूहानी इलाज करते हैं इंशाअल्लाह। मजीद कॉल चलाइए। मेरा नाम बशीर है, वालदा का नाम सफिया बीबी है। मैंने इस्तिखारा करवाना है कि मैं कहीं भी जॉब के लिए जाता हूँ या किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करता हूँ या कोई अपना काम शुरू करता हूँ तो बहुत रुकावटें हैं, मसला ही मसला। किसी भी तरह कोई तरीके से काम नहीं कर रहा। जॉब के लिए करता हूँ तो वो भी नहीं बनती है, अगर अपना स्टार्ट करता हूँ तो वो भी उसके में भी बहुत रुकावटें हैं। तो बहुत मसला, बहुत परेशान हूँ। बराए मेहरबानी है इस्तिखारा और रूहानी इलाज फरमा दीजिए। जी बशीर भाई अभी इस्तिखारा करते हैं, रूहानी इलाज भी अर्ज करते हैं। मजीद कॉल चलाइए। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा है, मैं सियालकोट से बोल रहा हूँ। मैं हर वक्त बीमार रहता हूँ, मैंने इस्तिखारा करवाना है। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा है और वालदा का नाम परवीन अख्तर है। जी अहमद रजा भाई आपका भी इस्तिखारा करते हैं, रूहानी इलाज अर्ज करते हैं। मजीद कॉल चलाइए। मेरा नाम आमिर खैर, मेरा नाम इकबाल बीबी। मतलब है कि मेरी जॉब कब तक मिल जाएगी मुझे? जॉब कब तक मिलेगी? जॉब कब तक मिलेगी? अल्लाह ताला जब चाहेगा तो आपको जॉब मिल जाएगी। अल्लाह पाक आपको जल्द हलाल और आसान रोजगार अता फरमाए। कब तक मिलेगी इसका तो कोई अंदाजा नहीं हो पाएगा। हम आपको मतलब इसका रूहानी इलाज कर देते हैं कि आपको जल्द हलाल और आसान रोजगार मुयस्सर आ जाए। मजीद कॉल चला दीजिए। मेरा नाम शमशाद अली है, मेरी वालदा का नाम मकबूल बीबी है। औलाद नहीं है, इस्तिखारा कर दीजिए। बे औलादी का सामना है जी, अभी अर्ज करते हैं, इस्तिखारा करते हैं। मजीद कॉल चलाइए। मेरा नाम बकार यूनस है, मेरी वालदा का नाम शाहदा परवीन है। जी मुझे नौकरी नहीं मिल रही, सरकारी नौकरी, कोई अमल बता दीजिए। अच्छा आपको भी रोजगार नहीं मिल पा रहा। जी बकार यूनस भाई अर्ज करते हैं आपको मुलाजमत मिल जाए, इसका रूहानी इलाज। मजीद एक कॉल चलाइए। मेरा नाम मोहम्मद अली रजा है और वालदा का मकबरी नसीम है। मेरी कमर और टांगों में शदीद दर्द रहता है, इस्तिखारा या कोई रूहानी इलाज बता दें। जी 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 अली रजा भाई इस्तिखारा भी करते हैं, रूहानी इलाज भी अर्ज करते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा जी, जिन ईसाई भाइयों ने इस्तिखारों का फरमाया आपके इस्तिखारे किए जा रहे हैं। इस दौरान आप रसूल पाक साहिब लौलाक सयाह अफलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम पेश करते रहिए। दुरूद सलाम भी एक बहुत ही बड़ा वजीफा है, जिसके बारे में किसी ने क्या खूब कहा है कि दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हर दर्द की दवा है सल्ली अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ली अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी पढ़ते रहिए। इस दौरान जिन साहब भाई ने हमसे रूहानी इलाज मांगे, आप रूहानी इलाज समाज फरमाइए। अच्छा शहजाद भाई हैं जिन्होंने शोर कोट से हमें कॉल की, सुल्तानुल आरफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये मुबारक शहर है माशाअल्लाह, जहाँ से इन्होंने हमें कॉल की है। तो इनको कमर में दर्द है, सीने में दर्द है, इसका कोई रूहानी इलाज शाह फरमाइए कि सीने और कमर की तकलीफ जाती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें सीने और कमर के दर्द से नजात अता फरमाए। मेरे शेख तरीकत अमीर सुन्नत की मायनास तालीफ मदनी पंचसूरा के सफ़हा नंबर 254 पर ये रूहानी इलाज मौजूद है। अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या मुहय्यू 7 बार पढ़कर अपने ऊपर दम कीजिए, ठीक है। और गैस हो या पेट या किसी भी जगह दर्द हो ना, वजू में या किसी भी जगह दर्द हो तो उस जगह दम कर दें इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। अपने ऊपर दम कर लें इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, दर्द जो है वो जाता रहेगा, ठीक है। अच्छा साकिन इसको पढ़ना चाहें या तो या मुहय्यी पढ़ लें फिर? जी जी, अगर साकिन पढ़ना, एक तो ये है कि या मुहय्यू जी, और अगर साकिन पढ़ना चाहें तो जैसा आप फरमा रहे हैं या मुहय्यी, ठीक है। अच्छा एक और ईसाई भाई हैं हमारे मोहम्मद हुसैन भाई। अच्छा इनका भी मसला सेम है और वकार यूनुस भाई का भी मसला सेम है कि हुसैन भाई को तो सिरे से गालिबन रोजगार ही नहीं मिल पा रहा और वकार यूनुस भाई को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही। तो इन दोनों के लिए कोई रूहानी इलाज फरमाइए कि इन दोनों को जल्द हलाल और आसान रोजगार बकदर किफायत नसीब हो जाए और उसमें बरकत भी हो। अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का रिसाला चिड़िया और अंधा सांप, ये बहुत प्यारा रिसाला है।
इस रिसाले में कमो बेश रोजी से मुतालिक 32 रूहानी इलाज भी मौजूद हैं। ठीक है, इसके सफ़हा नंबर 31 के ऊपर 31 में रिज़्क़ के दरवाजे खोलने का अमल लिखा हुआ है माशाअल्लाह। तो ये आप समाज भी फरमा लीजिए। अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू 300 बार बाद नमाज फजर पढ़िए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल रोजगार की परेशानी दूर होगी। और इसकी मुद्दत इलाज जो है इस 40 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको रिस्क मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा अल्लाह ने चाहा। चंद इस्लामी भाइयों के अच्छा शकील भाई लाहौर से ये फरमा रहे हैं कि रूहानी इलाज सिलसिला में अर्ज किराए के मकान में रहता हूँ, अपने मकान के हुसूल के लिए रूहानी इलाज बता दें। अल्लाह पाक ने जल्द जाती मकान अता फरमाए और हर वो इस्लामी भाई इस्लामी बहन जो किराए के मकानात में रहते हैं जी उनको अल्लाह तबारक व तआला अपना जाती मकान अता फरमा दे। तो ऐसा कोई अमल, ऐसा कोई रूहानी इलाज जिसकी बरकत से अल्लाह पाक इन्हें जाती मकान अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा आमीन। इनकी हाजतें पूरी हो जाएं और ये जो इनकी मुराद है दिल की ये पूरी हो जाए, इन्हें अपना जाती मकान मिल जाए। इसके लिए चाहिए कि अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम 321 बार पढ़कर हस्ब तौफीक कोई मीठी चीज ले लें और उसके ऊपर जो है फातिया दे दें और ये चीज मीठी चीज जो है बच्चों में तकसीम कर दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मुराद पूरी होगी। इन्होंने जाती मकान के लिए मुतालबा किया और एक और जो सवाल इसमें कह रहे हैं मेरा घर नहीं बिक रहा, इसका कोई रूहानी वजीफा बता दिए, इसका कोई रूहानी इलाज बताइए कि इनका घर जो है तो इनके जो तवक्कुआत हैं, जो उम्मीदें हैं उसके मुताबिक इनका फरोख्त हो जाए। जी, इसका भी रूहानी इलाज मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत के रिसाले चिड़िया और अंधा सांप के सफ़हा नंबर 30 पर मौजूद है। इस आयत का शुरू का हिस्सा फलम्मस्तयअसू मिन्हु खलसू नजिया, यहाँ से शुरू होके वहुवा खैरुल हाकिमीन यहाँ पर ये खत्म होती है। तो ये आयत मुबारक पढ़कर सामान या गाड़ी पर दम कर दीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल सामान फरोख्त होगा और मकान वगैरह भी जो है वो भी इंशाअल्लाह फरोख्त हो जाए। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुन समझे एक मुजरब अमल जिसको पाया कि अपना घर, अपनी गाड़ी या सामान बिकवाने के लिए अमल इसको बड़ा कारामत पाया माशाअल्लाह। तो ये आयत मुबारक है फलम्मस्तयअसू मिन्हु खलसू नजिया से शुरू होकर वहुवा खैरुल हाकिमीन यहाँ तक ये मुकम्मल होती है और 13वां पारा है, सूरह यूसुफ है और आयत नंबर 80। ये आप चाहे तो नोट कर लें अपने पास, 13वां पारा सूरह यूसुफ आयत नंबर 80। आइए बढ़ते हैं इस्तिखारों के जवाबात की तरफ और सुनते हैं कि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन जिन्होंने इस्तिखारों का फरमाया आपके इस्तिखारों में क्या जवाब आया। मोहम्मद आमिर खुर्शीद भाई है, सबसे पहले बीमार हैं और डॉक्टरों को भी इनका मरज समझ में नहीं आ रहा, क्या इस्तिखारे में इशारा आया, क्या रूहानी इलाज है इसका? इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में कोई अमल बंदिश, जादू, असरात वगैरह के मामलात नहीं है, बीमारी का इशारा आ रहा है। इनके लिए एक बड़ा प्यारा और आसान अमल है, मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की मायनाज किताब मदनी पंसूरा में आपने इसे तहरीर फरमाया है, या मुअमिनू 115 बार पढ़कर अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ लें और पानी पे दम करके भी पिए और अपने ऊपर भी दम करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसकी ये बरकत है कि मरीज सेहत पाएगा। इसके बाद अशफाक भाई हैं, इन्होंने अपनी वालदा के हवाले से मसला बयान फरमाया कि उनको जोड़ों में दर्द रहता है, इसका रूहानी इलाज। इनका भी इस्तिखारा किया गया है, इस्तिखारे में कोई जादू असरात नहीं, इन्होंने कहा था कि कोई जादू वगैरह कोई इस तरह के मामलात तो नहीं है, तो कोई जादू असरात के मामलात नहीं आ रहे, बीमारी का इशारा है। इनके लिए एक बड़ा प्यारा अमल है, या गनीयू जी, अगर जिस्म में कहीं भी दर्द हो, कमर में दर्द हो या जिस्म में कहीं भी दर्द हो तो उठते बैठते चलते फिरते इसका विर्द करें तो इंशाअल्लाह दर्द जाता रहेगा। इसके बाद हमारे बाबर भाई हैं, इन्होंने तंगदस्ती के हवाले से फरियाद की है, इस्तिखारे में क्या इशारा है इनके लिए? इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में कोई अमल बंदिश के मामलात नहीं है, आजमाइशी मामलात हैं, वक्ती तौर से आजमाइश है। एक अमल इन्हें पेश कर रहा हूँ, अगर घर में बीमारी और गुर्बत और नादारी ने बसेरा कर लिया हो तो बिला नागा 7 रोज तक हर नमाज के बाद या रज़्ज़ाकू, या रहमानू, या रहीमू, या सलामू 112 बार पढ़कर दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बीमारी, तंगदस्ती और नादारी से निजात हासिल होगी इंशाअल्लाह। इसके बाद हमारे जियाकोट से अहमद रजा भाई हैं और ये बीमार रहते हैं अक्सर और बेशतर,
इनका इस्तिखारे में क्या इशारा है? इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में इन पर भी कोई अमल बंदिश के मामलात या जादू असरात नहीं है, बीमारी का इशारा आ रहा है। इनके लिए भी एक बड़ा प्यारा अमल है, अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ें और या हय्यु 1000 बार पढ़कर पानी पर दम कर लें और वो पानी पिए, अपने ऊपर भी दम करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी बरकत से बीमारी जाती रहे। ठीक है। इसके बाद हमारे शमशाद अली भाई हैं, औलाद नहीं है इनके यहाँ, तो क्या वजह हो सकती है औलाद ना होने की? इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में कोई अमल बंदिश, जैसे लोगों को महसूस होता है कि किसी ने कुछ करा दिया है तो इस वजह से ये सिलसिला नहीं हो पा रहा है, तो इसमें कोई अमल बंदिश के मामलात नहीं है, आजमाइशी मामलात हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ करें। और एक बड़ा प्यारा अमल मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला जिंदा बेटी कुएं में फेंक दी, इसमें आपने तहरीर फरमाया है कि हर नमाज के बाद 300 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का मामूल बना लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल साहिबे औलाद हो जाएंगे। इस्लामी बहन और इस्लामी भाई दोनों ये अमल कर सकते हैं, तो दोनों ही करें, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हासिल होंगी। ठीक है, माशाअल्लाह। अच्छा, फिर अली रजा भाई हैं, इनकी कमर में टांगों में दर्द रहता है, इस्तिखारे में क्या इशारा है इनके लिए? इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में इनकी बीमारी का इशारा आ रहा है, तो इसके लिए एक बड़ा प्यारा अमल है। अगर इनकी कमर में तकलीफ रहती है और उन्होंने कहा कि टांगों में दर्द रहता है, तो एक मर्तबा या मुगनियु ये पढ़कर अपने हाथों पर दम करें, अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़ लें और जिस मुकाम पे दर्द है, कमर पे दर्द है, कमर पे भी मालिश करें और टांगों में दर्द है तो टांगों पर भी हाथ फेरें, तो इंशाअल्लाह दर्द जाता रहे। इंशाअल्लाह। तू सारे मरीजों को अल्लाह शिफा दे दे, तू सारे मरीजों को अल्लाह शिफा दे दे, अच्छा है फकत वो जो बीमार है। सुभान अल्लाह तबारक व तआला हमें मरीज मुस्तफा बना दे, बीमार मदीना बना दे इंशाअल्लाह। फिर सारी बीमारियां, सारी तकलीफें भेजें। आमीन। तो जिन इस्लामी भाइयों के इस्तिखारे हुए, ये याद रखिए, इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता और हकीकत हाल अल्लाह ताला ही, अल्लाह पाक ही जानता है। चंद SMS हम ले लेते हैं। अच्छा, ये हमारे इस्लामी भाई फरमा रहे हैं, मोहम्मद इसहाक नाम है इनका, और फरमा रहे हैं कि हमें लकवे की बीमारी है, इसका कोई रूहानी इलाज बता दीजिए इंशाअल्लाह। अमूमन लकवे में ऐसा होता है कि जी एक तरफ से जो है तो हिस्सा जिस्म का जो होता है जी थोड़ा सुन होने लगता है और थोड़ा मुंह जो है तो जरा सा उसका टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ापन आ जाता है जी। तो इस लकवे की बीमारी से शिफायाबी नसीब हो जाए, ऐसा कोई रूहानी इलाज? इसका रूहानी इलाज में इंशाअल्लाह अर्ज करता हूँ, अल्लाह पाक से दुआ भी है कि अल्लाह पाक इन्हें इस मर्ज से शिफा अता फरमाए, नजात अता फरमाए। मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का रिसाला बीमार आबिद, ये बहुत प्यारा रिसाला बीमार आबिद, इस रिसाले के सफ़हा नंबर 28 इस में फालिज और लकवा से मुताल्लिक 2 रूहानी इलाज तहरीर हैं, इसको आप समाअत भी फरमा लीजिए। अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु 100 बार सोते वक्त पढ़ने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से लकवे की आपस में हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको लकवा और फालिज के मरज से महफूज रखे। जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक मुस्तकिल तौर पर इमामा शरीफ सजाने वाला खुश नसीब मुसलमान फालिज और खून की वजह से जन्म लेने वाले बाज बीमारियों से महफूज रहता है, क्योंकि इमामा शरीफ सजाने की बरकत से दिमाग की तरफ जाने वाली खून की बड़ी बड़ी नालियों में खून का दबाव सिर्फ जरूरत की हद तक रहता है। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस सुन्नत मुबारक को अपना लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस सुन्नत पर अमल की बरकत से इसका सवाब भी मिलता रहेगा और साथ ही साथ इसमें और भी कई इसके फजाइल, जिसमें जो इमामा शरीफ सजाता है उसमें हिल्म पैदा होता है, उसमें बुर्जबारी पैदा होती है और उसके अंदर जो है तो गुस्सा कंट्रोल करने का एक मादा पैदा होता है और भी कई उसको बरकतें नसीब होती हैं। वहीं एक बरकत ये भी उसको नसीब होती है कि फालिज और लकवा से वो महफूज रहता है। एक और इस्लामी भाई का मैसेज है, सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, फसावत कल्बी का कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की मायानाज़ किताब मदनी पंसूरा, इसके सफ़ा नंबर 23 पर 23 पर आपने दिल की सख्ती दूर करने के लिए एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है। हजरत सैयदना अबू जाफर मोहम्मद बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं
जो शख्स अपने दिल में सख्ती पाए तो वो एक प्याले में जाफरान से यासीन वल कुरआनिल हकीम लिखे, फिर इसे पी जाए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका दिल नरम होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कितना जबरदस्त रूहानी इलाज आपने समाप्त फरमाया। मदनी चैनल के नाज़रीन, यकीनन दीगर अमराज अपनी जगह, लेकिन दिल का सख्त हो जाना ये बहुत बड़ा मर्ज है, बहुत बड़ी बीमारी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस मरज से महफूज रखे। बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाह मुबीन फरमाते हैं, हैरत है उन लोगों पर जो मुर्दा पर होते हैं, मरने वाले पर होते हैं, जिसे एक दिन मरना ही है, लेकिन दिल के मुर्दा होने पर, दिल के मर जाने पर नहीं रोते कि ये उससे बढ़कर है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दिल की सख्ती से महफूज रखे। एक और इसमें भाई हैं, ये फैसल अब्बास है। अच्छा, मुझे स्टमक प्रॉब्लम है, मैदे का प्रॉब्लम होगा और कर्ज अदा नहीं हो रहा, मेहरबानी करके रहनुमाई फरमाएं। जी, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें कर्ज के बाढ़ से नजात अता फरमाए। मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की मायनाज़ तालीफ मदनी पंसूरा के सफ़हा नंबर 245 पर कर्ज उतारने का वजीफा तहरीर है, आप समाअत भी फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा क्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। ये दुआ ता हुसूल मुराद हर नमाज के बाद 11-11 बार और सुबह शाम 100 बार रोजाना पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से बारे कर्ज से नजात हासिल। हमारे SMS वालों की भी दिलजोई करते रहे। अजहर इकबाल भाई हैं, ये फरमा रहे हैं कि काम में दिल नहीं लगता, तो इसका कोई रूहानी इलाज, काम में इनका दिल लग जाए। वो ये कि अजहर भाई आप यूं करें कि जुम्आ के दिन बाद नमाज जुम्आ 101 मरतबा या अल्लाह किसी कागज पर लिख लीजिए, फिर इसे तावीज की तरह तय करके इसको या बाजू में पहन लीजिए या गले में पहन लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल काम में दिल लग जाएगा। कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी वालदा का नाम अजीजा बेगम है और उनकी उम्र जो है तकरीबन 75 साल के करीब है। उनके घुटनों में, जोड़ों में जो है वो शदीद जो है तकलीफ रहती है, दर्द रहता है। तो इस हवाले से जो है कोई रूहानी इलाज जो है मालूम करना था, क्योंकि उनके लिए बहुत दवाएं वगैरह डॉक्टरों ने जो है बेहद दवाएं खिला के जो है उनको कोई इफाका नहीं होता है। अल्लाह तबारक व तआला इनको शिफा अता फरमाए। मजीद कॉल चलाइए। फारूक नगर लाड़काना से मोहम्मद रजा अत्तारी, रूहानी इलाज चाहिए, हड्डियों में दर्द है, मेरी अम्मी का नाम इस्लाम है और रूहानी इलाज चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोनों ईसाई भाइयों की वालदाओं का एक ही मसला है, इन दोनों का कोई रूहानी इलाज मुश्तरका इंशाअल्लाह ज़रूर अर्ज कर देता हूं। मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की मायनाज़ तालीब घरेलू इलाज के सफ़हा नंबर 44 पर ये रूहानी इलाज मौजूद है। दर्द का रूहानी इलाज, बदन में दर्द या किसी चीज की शिकायत हो तो तकलीफ की जगह पर सीधा हाथ, अपना सीधा हाथ तकलीफ की जगह पर रखकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 बार और फिर 7 बार ये दुआ पढ़िए, अऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। ये दुआ पढ़ें, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपके जिस्म का दर्द जाता रहेगा। हवाला किस किताब से? ये मेरे शेख ये सुन्नत की किताब घरेलू इलाज के सफ़ा नंबर 44 सफ़ा नंबर 44 घरेलू इलाज। आप ये घरेलू इलाज मकतबतुल मदीना से हदीयतन हासिल फरमा लीजिए। इसमें न सिर्फ घरेलू इलाज है बल्कि कई घरेलू आसान नुस्खे और तिब्बी इलाज भी इसके अंदर मौजूद है। मगर साथ में ये भी ताकीद है कि इनके जो भी नुस्खों पर और जो तिब्बी इलाज इसके अंदर लिखे हुए हैं उन पर अमल किसी तबीब के मशवरे से ही किया जाए। मजीद कॉल चलाइए। मेरी वालदा, उनका नाम रेशम जान है और उनकी वालदा का नाम ज़ेबुन्निसा है। मेरी वालदा की अक्सर तबीयत खराब रहती है, बुखार रहता है, मुझे 4-5 माह से न बुखार है, उसके बारे में इस्तिखारा फरमा। मजीद कॉल चलाइए। आरिफ सज्जाद अत्तारी बात कर रहा हूँ, बाबर मदीना कराची से। मेरे बच्चों की अम्मी की बहन जिसका नाम अस्मा बतूल बिनते रुखसाना परवीन है, काफी अरसे से बीमार हैं। उनको झटके लगते हैं और दौरा पड़ जाता है, बेहोश हो जाती हैं। तो काफी इलाज कराया, कुछ आराम होता है, फिर वही हालत हो जाती है। बराए करम इस्तिखारा भी कर दें और कोई रूहानी इलाज भी बता दें। जी आरिफ भाई, अभी अर्ज करते हैं इंशाअल्लाह। मजीद कॉल चलाइए।
मेरा नाम अमजद अली है, तो वालदा का नाम हाजरा बीबी। तो मेरे साथ मसला कि मेरी तबीयत में ठीक रहती है, वक्त से रहते हैं और बहुत गुस्सा आता है, कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। तबीयत खराब, गुस्सा आता है, तबीयत खराब रहती है, वसवसे आते हैं, ये आपने सारे मसाइल बताए। जब अभी आपको इनका रूहानी इलाज करते हैं इंशाअल्लाह। मजीद कॉल चलाइए। मेरा नाम नसीमुल्लाह है जी, वालदा का नाम सकीना बीबी है, और मसला है माली हालात ठीक नहीं है। कहते हैं कि किसी ने जादू वगैरह किए गए। माली हालात आपके सही नहीं जी, अभी आपको इसका रूहानी इलाज करते हैं इंशाअल्लाह। मजीद कॉल चलाइए। मेरा नाम शाहिद महमूद है, वालदा का नाम बशीरा बीबी। मसला ये कारोबार का मसला, मैं कैरी डब्बा लेना चाहता हूँ, सारा कराना मेरे लिए बेहतर है कि नहीं? कैरी डब्बा लेना है, यानी ठीक है, इस्तिखारा करते हैं अभी इंशाअल्लाह। शाहिद महमूद भाई मजीद कॉल चलाइए। और बच्चे का इस्तिखारा कराना है, और दो दफा सऊदी अरब से आ गया, लेकिन कोई सेटिंग नहीं हुई, 2-3 महीने के बाद वापस आ जाता है। अब दुबई भेज रहा हूँ, बच्चे का नाम असद नवाज है और वालदा का नाम परवीन अख्तर है। तो बराए मेहरबानी इस्तिखारा करके बताएं कि ये जा सकेगा या नहीं। अच्छा, ये देख लेते हैं कि आपके बेटे का दुबई जाना बेहतर है या नहीं। मजीद कॉल चलाइए। मेरा नाम मोहम्मद साजिद, वालदा का नाम मकसूद मई। इस्तिखारा करवाना है, घरेलू झगड़ा रहता है हर वक्त। घरेलू झगड़ों का इस्तिखारा जी, अभी अर्ज करते हैं, इस्तिखारा करते हैं साजिद भाई। मजीद कॉल चलाइए, आखिरी एक। शुगर का प्रॉब्लम है मुझे। मोहम्मद इमरान शाहिद नाम है मेरा, और मेरी वालदा का नाम निसार बेगम। शुगर का रूहानी इलाज अभी आपको अर्ज करते हैं इंशाअल्लाह। जिन ईसाई भाइयों ने इस्तिखारों का फरमाया, आपके इस्तिखारी किए जा रहे हैं। इस दौरान जिक्र और दुरूद में मशगूल रहिए, और जिन्होंने रूहानी इलाज मांगे आप रूहानी इलाज समाप्त फरमाइए। सबसे पहले हमारे जो ईसाई भाई हैं, इन्होंने अपना मसला बयान किया है कि इनको वसवसे रहते हैं, तबीयत खराब रहती है, गुस्सा आता है। अमजद अली भाई नाम बताया इन्होंने, क्या इसका रूहानी इलाज आप इरशाद फरमा रहे हैं? अल्लाह पाक इनको वसवसों से और शैतान के शर फितने से नजात दे। आमीन आमीन। इसके लिए रूहानी इलाज ये है कि इन्हें चाहिए जब भी गुस्सा आए ना जी, तो 10 मरतबा ये पढ़ लिया करें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये 10 मरतबा पढ़ लें, इंशाअल्लाह ज़ोजल इसकी बरकत से शैतान के वसवसे से महफूज रहेंगे। और अगर वसवसे बहुत ज्यादा आते हैं तो वसवसे आने की सूरत में, और ये चाहते हैं कि भाई मैं नेक बन जाऊं, तो चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या खबीरू या खबीरू या खबीरू पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह ज़ोजल इसकी भी बरकतें आपको हासिल होंगी माशाअल्लाह। अच्छा, ये एक और ईसाई भाई हैं, नसीम भाई, जिन्होंने बताया कि घर के माली हालात इनके खराब हैं, माली परेशानी है, तो इसका कोई रूहानी इलाज? अल्लाह पाक इनकी माली हालत बेहतर करे और गुर्बत से नजात अता फरमाए। मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का रिसाला चिड़िया और अंधा सांप के सफ़हा नंबर 30 पर गुर्बत से नजात का एक रूहानी इलाज मौजूद है, इसे समाअत फरमा लीजिए। अगर घर में बीमारी और गुर्बत और नादारी ने बसेरा कर लिया हो तो बिला नागा 7 रोज तक हर नमाज के बाद या रज़ाकू या रहमानू या रहीमू या सलामू, या रज़ाकू या रहमानू या रहीमू या सलामू 112 बार पढ़कर दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बीमारी दूर होगी, तंगदस्ती दूर होगी और नादारी से नजात हासिल है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मजीद एक ईसाई भाई हैं, ये फरमा रहे हैं कि इनको शुगर का रूहानी इलाज दरकार है, इसके हवाले से कोई इरशाद फरमाइए। शुगर के लिए ये कुरानी दुआ सुबह शाम 3-3 बार पढ़ लिया करें और पानी पर दम करके पी भी लिया करें। समाअत फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये कुरानी पाक की दुआ और आयत पारा 15 बनी इसराइल आयत नंबर 80 मौजूद है। इसको सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके पी भी लें, अपने ऊपर दम भी कर लें, इंशाअल्लाह शुगर के मर्ज से नजात हासिल होगी इंशाअल्लाह। अच्छा जी, बालों को लंबा करने का वजीफा बताइए। बाल लंबे हो जाएं। सुभान अल्लाह। बालों को लंबा करने का वजीफा भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत के रिसाले बीमार आबिद में मौजूद है जी, इसको आप समाअत भी फरमा लीजिए। और दावत इस्लामी के मदनी माहौल से हरदम वाबस्ता रहिए, इंशाअल्लाह आपको ढेरों बरकतें हासिल होंगी। सफ़हा नंबर इस बीमार आबिद का सफ़हा नंबर 37 है। बावजू हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरतुल लैल 41 बार पढ़कर सरसों या नारियल के
तेल की बोतल के ऊपर दम कर लीजिए। रोजाना सोते वक्त इसको सर में हल्के हल्के मालिश कीजिए। इसकी कुछ दिन मालिश करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सर के बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे और बाल लंबे भी। या हो सकता है कि जहन में आए कि बोतल पर दम करें या तेल पर दम करें। जी 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 जी, बोतल का ढक्कन बंद करके बोतल पे दम करते हैं जी, या तेल के ऊपर दम करें। हाँ, वो तेल उस बोतल के अंदर होगा, उस पे दम करना है। ढक्कन खोलकर उस पे दम कर दें। दम कर दीजिए, ठीक है। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं हमारे इस्तिखारों के जवाबात की तरफ। कॉल्स काफी आई हुई हैं, तो आप के कॉल्स के भी जवाबात देने हैं और कोशिश करें SMS के भी जवाबात हम देते जाएं। ये हमारे साईं भाई हैं जिन्होंने मसाइल वगैरह बताए, अपने बयान फरमाए कि वालदा है रेशम जान, इनकी तबीयत खराब रहती है, बुखार रहता है, इसका इस्तिखारा आपने किया होगा, इस्तिखारे का जवाब भी बताइए और रूहानी इलाज भी बताइए। इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में कोई अमल बंदिश या जादू असरात के मामलात नहीं हैं। अगर इन्हें बुखार रहता है तो मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला बीमार आबिद, इसके सफ़ा नंबर 25 पर आपने बुखार के रूहानी इलाज तहरीर फरमाए। बुखार वाला बकसरत बिस्मिल्लाहिल कबीर पढ़ता रहे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बुखार का जो मर्ज है तो ये इंशाअल्लाह इसमें कमी आ जाएगी, इंशाअल्लाह बुखार जाता है। अच्छा, मजीद ये हमारे एक साईं भाई हैं जिन्होंने अपने बच्चों की खाला का मसला बयान फरमाया। तो ये अस्मा बतूल नाम बताया, इनको मतलब हाँ इनके झटके लगते हैं, दौरा पड़ता है, बेहोश हो जाती हैं, तो इशारा क्या मिला इनका? इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में इन पर नजरे बद का इशारा आ रहा है, तो इसके लिए मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला बीमार आबिद, इसके सफ़ा नंबर 35 पर 35 पर आपने नजरे बद से बचने के रूहानी इलाज तहरीर फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें और 60 बार 60 बार पढ़कर मरीज पर दम कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल नजरे बद का असर जाता रहेगा। अच्छा, मजीद ये कि साईं भाई ने अपने अपने बेटे के हवाले से फरमाया जी वो दुबई जाए या ना जाए, इनके लिए भी इस्तिखारा किया गया है, बेहतरी का इशारा है, जा सकते हैं। साजिद भाई घरेलू झगड़ों का शिकार हैं, तो इस्तिखारे में क्या इशारा आया? इस्तिखारे में कोई अमल बंदिश के मामलात नहीं है, इनके लिए एक रूहानी इलाज पेश कर रहा हूँ। मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसे नकल फरमाया है कि अव्वल आखिर 10 बार दुरूद पाक पढ़ें और रोजे जुमा 1001 मरतबा या वदूदू ये लाहौरी नमक पर पढ़कर दम कर लें और वही नमक घर में हंडिया पकाने में, आटा गूंदने में इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह घरेलू जो झगड़े हैं इनसे निजात हासिल हो जाएगी। ठीक है, चंद SMS भी हम शामिल कर लेते हैं। अच्छा, ये एक ने अपना मसला बयान किया है, हासिदीन बहुत परेशान करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको हासिदीन के हसद से, शरीरों के शर अंगेजी से महफूज रखे। अब इसका कोई रूहानी इलाज बता दें। इंशाअल्लाह ज़ोदिल अर्ज करता हूँ, अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए। आपको सबसे पहले तो ये एक अमली रूहानी इलाज अर्ज कर देता हूँ कि हर वक्त जो है वो बावजू रहा करें और सुबह शाम अपने ऊपर सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें अव्वल आखिर शरीफ के साथ। इंशाअल्लाह ज़ोदिल हासिदीन के हसद से महफूज रहेंगे। एक और SMS है जिन्होंने फरमाया कि मुझे मोटापा बहुत है, क्या करूं? तो आप एक काम कीजिए, मकतबतुल मदीना आप जाइए, वहाँ में शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का एक रिसाला है, वजन कम करने का तरीका, बेहतरीन रिसाला है। ये आप मकतबतुल मदीना से आप खरीद फरमाइए और इसे चाहे तो ज्यादा तादाद में ले लें, इसके तकसीम रसाइल कर सकते हैं, जो फरबा उसको भी दे सकते हैं, जो गैर फरबा हो तो उसको भी दे सकते हैं, ताकि जो फरबा वो गैर फरबा हो जाए और जो गैर फरबा है वो फरबा ना हो सके। तो बहुत इसके अंदर प्यारे प्यारे मदनी फूल हैं, ये आप खरीदिए और इसको तकसीम भी फरमाइए। अल्लाह तबारक व तआला की बारका में दुआ है, या अल्लाह अज़्ज़ व जल जिन परेशान हालों ने, दुखियारों ने, मुसीबत के मारों ने, बेकरारों ने, दिल फिगारों ने, बेसहारों ने हमें कॉल्स की सबकी तमाम परेशानियां आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल का उजड़ा चमन हो फिर आबाद, कोई ऐसी हवा चला या
چلا